Good morning to everyone. So, we will discuss the topic which is pending part of your calibration of SCP. We are working on your paper 4, unit 4, that is nothing but the analytical method validation, and we are currently discussing the subtopic that is the calibration of your instrumentation. So, we have see the few SOPs how to calibrate the instrumentation. We have see the two examples. First one is your UV visible spectroscopy, and the another example is nothing but your HPLC, calibration of HPLC. So we are already discussed or read a few terms that regarding the how we calibrate the pump, how we can calibrate detector, then linearity testing, calio testing, how we can check the port, that is gradient system and the port for all the four pumps. And currently we are on the last topic, that is how we can actually calibrate the temperature for the oven, or which generally using for the column, giving the temperature for the column, and the sample cooler tray. I have never seen a sample cooler tray actually, so I really don't know how exactly it's look like and how exactly it work out. बट डेफिनेटली ऐसे कुछ तो सिस्टम रहेगा जैसे ओवन जैसे, जहाँ पे तुम लोग का सैंपल कूलिंग कंडीशन में रहता होगा, सो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है उसके लिए उनके में भी देयर आर सम कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स. ठीक है. So I just read this particular point so we can complete this particular topic after reading this particular point. So temperature accuracy test for column oven and sample cooler tray. Uh, just 1 second. I just mute to all of you. Then otherwise बीच में आवाज आता रहता है. Okay. So temperature accuracy test for the column oven and sample cooler tray. The use of calibrated thermometer to measure the actual temperature in the oven and of the sample cooler tray and compare it to a set value. So procedure for temperature accuracy test for column oven. The set the temperature accuracy is measured by using performance check. प्रेस दैट पर्टिकुलर बटन जो भी उनके कीज रहेंगे टू एंड सिलेक्ट द 5 ओवन टेम्परेचर फॉर द परफॉर्मेंस चेक. सो यू कैन check the 5 different temperature maybe. So select the 40 degree Celsius and 50 degree Celsius temperature to measure the instruction on the screen. Use the clip to set the calibrated temperature sensor at the center of the lower step of heat block inside the device. Press the oven key to start the temperature adjustment. After the temperature has stabilized, the temperature fluctuation amplitude will be the automatically measured for 5 minutes. Record the actual value against the calibrated thermometer value for the different times interval, that is the 30, 45 and 60 minutes. Procedure of the temperature accuracy is the same for the cooler tray. सो प्रेस जो भी उन लोग के कीज रहेंगे, एंटर 1 2 सैंपल ट्रे द पैरामीटर सेक्शन ऑफ द मेथड स्क्रीन, सेट द कूलिंग रैक आर इन द मेन यूनिट, पुट द प्रोब इन कैलिब्रेटेड थर्मामीटर इनसाइड द सैंपल कूलर ट्रे, wait for stable the temperature since it is automatically taken around 90 minutes. Oh my god. Then press blah blah blah, then record the actual value against the calibrated thermometer at different interval. In short, मतलब हम लोग क्या करते हैं, we set the temperature. तो definitely temperature measure करने का system का itself एक probe होता है जो check करते तुम्हारे system के ऊपर temperature बताता है कि what is exactly temperature of your column. जैसे अपने पंप का वैल्यू आता है, अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ योर पंप, देन व्हाट इज द फ्लो रेट. वहीं पे डेफिनेटली देयर इज अ वन बॉक्स रहेगा जहाँ पे यू गेट द टेम्परेचर ऑफ योर कॉलम कि एग्जैक्टली कॉलम का टेम्परेचर कितना है. सो वो मेजर करने के लिए उनका प्रोब रहेगा. सेम वे जहाँ पे तुम लोग कॉलम रखते हो क्लोज कंटेनर में, यू कीप योर थर्मामीटर एंड चेक द टेम्परेचर एट द थर्मामीटर कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम है या नहीं. सेम फॉर योर कूलर रैक के लिए भी सेम सिस्टम रहेगा. लेकिन आई डोंट नो कूलर रैक का एग्जैक्टली टेम्परेचर कितना होता है ना, हाउ एग्जैक्टली वी कैन मेजर इट विद अ थर्मामीटर, बिकॉज आइडियली थर्मामीटर 0 से स्टार्ट होता है एंड कूलर रैक अगर 0 से नीचे रहेगा, so I really don't know how they are exactly measuring the temperature. यहाँ पे बोला तो they are using thermometers, so hope so we assume कि वो 4 डिग्री सेल्सियस वगैरह ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा, but I really don't know. So बट प्रोसीजर तो सेम रहेगा ऐसे, लेकिन उसके लिए पता नहीं कौन सा यूनिट दे कैन यूजिंग, बिकॉज आई नेवर सीन कि ऐसे कूलिंग टेम्परेचर वाला रैक होता है.
होता रहेगा डेफिनेटली, लेकिन उसका चेक कैसे करना है सच में मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके। So here we completed the procedure of how exactly we are go for the calibration of your HPLC. So here we will stop the particular topic, that is the calibration of instrumentation and glasses. I hope nobody is having any doubt with respect to this particular topic. So I just want to try to cover this particular unit in today's lecture, both morning and afternoon session. I don't know how much we can cover, but I will try to finish because बाकी के दो तीन topics है वो काफी simple topics है, and I really don't want to elaborate much more on this particular topic. One of the important topics which I really want to discuss after the calibration of your instrumentation is nothing but the good weighing practice, because तुम लोग daily basis पे weight करते हो, but definitely you are making lots of mistakes during the weighing balance. So as as per my experience, the people are मतलब maximum students or people freshers come in freshers as a company, and really they don't know how to weight the sample or exactly what is the procedure for sample weighing. Through we already instruct you, we are already teach you exactly what is the method. Still there are you performing lots of mistakes during the weighing balance. So we will see little bit deal elaborately in this particular topic. See what is a good practice in your weighing balance. ठीक है, so सब लोग मुझे एक एक पॉइंट बताओगे, उसके बाद जो भी पॉइंट पेंडिंग रहेगा आई विल डेफिनेटली ऐड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो चलो स्टार्ट. You can just write in chat box because everybody want to say something, at least single line with respect to bolus. There are total 17 people up till now, so I want 17 good guidelines with respect to weighing practices in a balance. Okay, so we will start writing. चलो कौन लिखता है, चलो स्टार्ट करो. फर्स्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा गुड वेइंग प्रैक्टिस का, बैलेंस का. First, we have to clean the balance and platform. Very good. Okay. Next, सुप्रिया ने बोला, सुप्रिया का आंसर खत्म हो गया. सिंपल आंसर देके चांस खत्म. ओके, नेक्स्ट पर्सन. सबसे पहले बैलेंस को क्लीन करोगे, प्लेटफॉर्म को क्लीन करोगे. नेक्स्ट क्या करोगे? अभी कोई तो लिखोगे बैलेंस को चालू करना है. ठीक है, हो गया बैलेंस चालू हो गया, आगे क्या करना है वो लिखो. यस, एनीबडी? ये स्वरज, शब्दाली, सुरभि, संध्या, जो भी है चलो राइट कर लिखो. ओके, श्रद्धा वेरी गुड. ठीक है, क्लीन करने के बाद सबसे पहले वी डू द कैलिब्रेशन. डेफिनेटली वी परफॉर्म द कैलिब्रेशन. then we have to start the balance. After that wait for some time. then we have to start balance. After that we wait for some time. Okay, balance को start करना है. balance को start करने के बाद some time के लिए हम लोग को wait करना है definitely to stabilize the balance. then we calibrate the balance. Okay, उसके बाद we will calibrate the balance. next क्या करोगे? हो गया, calibration करके ही रखोगे. you don't want to take a wait. चलो राइट लिखो फटाफट. कैलिब्रेशन यूजिंग द वेट एंड देन रिकॉर्ड अ कैलिब्रेशन वेट. ओके, वो सब हो गया. अभी इमेजिन करो कैलिब्रेशन में बैलेंस एक्यूरेटली आता है. देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? then take a weight of a vessel and zero it exactly. then we keep the empty container and we tear the particular balance to stabilize, and you don't want to interfere with the weight. Very good. then first take a paper and calibrate and take a weight. Not calibrate, we tear it. Okay, first we take the paper or any vessel, we keep it there, we make the balance to stabilize, and then we tear it. then okay, tear with the paper. Very good. Okay, then we take the weight. Okay, weight लेने के बाद क्या करोगे? इमेजिन करो तुम लोग को लेना है 100 मिलीग्राम वेट लेना है, तो तुम लोग ने उसके बाद 100 मिलीग्राम का वेट लिया. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? Calibration should be taken at stabilized temperature. Okay, after every weight, wait for some time to stable the reading. Very good, Supriya. Next, वेट रखने के बाद
वे सैंपल को निकालोगे ना बैलेंस के बाहर बीकर में डालने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए, राइट? या उसी के ऊपर रखोगे? वो ठीक है, चलो हम लोग ने वेट लिया, फिर हम लोग ने सैंपल रिमूव किया, उसके बाद बैलेंस के साथ क्या करोगे? ऐसे ही छोड़ दोगे बैलेंस को दिन भर के लिए? क्लोज द डोर बिफोर द कंफर्मिंग वेट। वेरी गुड वरज शिंदे, गुड आंसर। ठीक है, again to wait for D0 to reading. Okay. Where is Razina? Akash, write something. Are you present in given today's lecture? Again to wait for D0 reading. हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे? Yes, there is a very very important point you are actually missing. Again to wait zero reading, then clean the balance again and close the glass doors. Okay. ये सब करके अभी इमेजिन करो तुम लोग का वेट लेके हो चुका है, अभी तुम लोग ने जो भी वेट लिया था उसको बीकर में डाल के डिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। अभी क्या करोगे? सोचो एंड बताओ। क्या करते हैं हम लोग वेट लेने के बाद? वेट लेने के बाद बैलेंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं? नो आंसर। वे लेने के बाद बैलेंस को ऐसे ही छोड़ते हो? क्या करते हो? कुछ तो करते होगे ना, बैलेंस को बंद करते होगे या फिर कुछ और? रीसेट टू जीरो अगेन। ओके, वी विल टर्न इट ऑफ। चलो खत्म, मतलब क्या है, किस्सा ही खत्म। बैलेंस को बंद कर दिया, अभी कुछ काम का नहीं। चलो जब नेक्स्ट टाइम आओगे तब फिर से चालू करेंगे। प्लग ऑफ, स्विच ऑफ ऑफ द वेग। आई यू रियली रिमूव द प्लग ऑफ? आई नेवर सीन कि तुम लोग ने बैलेंस का कभी प्लग निकाल के रखा है करके। ओके, स्विच ऑफ द वेइंग बैलेंस, तो किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, ओके। अभी जस्ट लेट मी नो, इज इन योर बैच देयर आर हाउ मेनी पीपल ऐसे हैं, या फिर कितने लोग ऐसे उन्होंने कभी भी अभी तक बैलेंस के ऊपर वेट लिया ही नहीं? कितने जन है? जस्ट जस्ट आई जस्ट वांट टू नो, इज देयर एनीबॉडी लाइक कि उनको अभी तक कभी भी बैलेंस यूज करने का चांस ही नहीं मिला, और हम लोग ने अभी तक कभी भी बैलेंस को यूज ही नहीं किया खुद से इंडिविजुअली? हम लोग ने वी नेवर टेक द वेट ऑन द बैलेंस। कितने जन है? जस्ट राइट योर नेम, डोंट वरी, उसमें शाय होने की कोई बात नहीं। अगर कोई रहेगा तो नेक्स्ट टाइम आई विल, मैं उनको चांस दूंगी वेट लेने के लिए। एंड आई जस्ट वांट टू नो, ताकि बैलेंस हैंडलिंग का एक्सपीरियंस के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे कितने जन है कि जिन्होंने अभी तक बैलेंस कभी भी यूज नहीं किया है। इज देयर एनीबडी? Okay, कोई तो there is nobody is writing their name, so we assume that ki everybody know how to use the balance and everybody has already used the balance for weighing purposes. ठीक है? Okay, so let's discuss from the starting. Say there are few points which we are missing already. So we will see the as per good, that is a good weighing practice is a GMP, good जो भी अपने good manufacturer और GLP, that is good laboratory practice होते हैं, उसके बेसिस पे तुम लोग बैलेंस पे कैसे वेट करोगे? व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग ड्यूरिंग द टेकिंग द वेट, एंड व्हाट आर द मेंटेनेंस स्टेप्स व्हिच वी आर परफॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग और ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग द वेट। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले आते हैं व्हेनेवर यू आर एंटर इन अ कंपनी, और जनरली अपने कॉलेज में भी अगर तुम लोग को आज प्रैक्टिकल में बैलेंस यूज करना, whenever you are entering, ठीक है? So first of all we keep all the humidity, we just that is suppose तुम्हारे रूम में एसी रहेगा, then you on generally balance रूम में एसी नहीं होता है, so you just on that temperature and humidity check वाला stabilizers, मतलब each and every company they have the for particular kind of strip, मतलब अभी कैसे बताओ, जैसे थर्मामीटर होता है, सेम वे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस मेजरमेंट का apparatus होता है, ठीक है, जो हर एक रूम में लगाया हुआ होता है वॉल के ऊपर। तो सबसे पहले उसका तुम लोग बटन ऑन करोगे,
देन उसके बाद रूम को तुम लोग आधे घंटे के लिए स्टेबलाइज रखोगे कि रूम का टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इफ जो भी तुम लोग के एयर कंडीशन रूम वगैरह सबको तुम लोग ऑन करोगे, बिकॉज मे बी बैलेंस रूम में एसी नहीं होता है, बट भी देर में भी चांसेस है कुछ एयर यहाँ से वहां से, बिकॉज पूरा सेंट्रलाइज रूम है तो कहीं ना कहीं से एयर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो वी जस्ट स्टेबलाइज द रूम, देन आधे घंटे के बाद जनरली यू स्टार्ट, सबसे पहले जब भी स्टार्टिंग में फर्स्ट डे के स्टार्टिंग में व्हेनेवर यू आर यूजिंग फर्स्ट टाइम द बैलेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट द बैलेंस फॉर कैलिब्रेशन पर्पज के लिए। तो डेफिनेटली पहले बैलेंस को स्टार्ट करोगे। बिफोर यू स्टार्ट द बैलेंस, you first you will check the balance is in a proper way to condition, it is just stabilize on your table, मतलब वो हिल नहीं रहा है, उसको चेक करना है प्रॉपरली स्टेबल है। एंड देयर इज ईच बैलेंस के ऊपर एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर एक छोटा सा वाटर का बबल होता है, ठीक है। वाटर के अंदर से एक रिंग होती है और बबलर होता है। तो फर्स्ट वी विल चेक दैट द बबल इज एग्जैक्टली ऑन द सेंटर वेयर इट शुड बी, मतलब वो एक राउंड रेड कलर, अपने यहाँ पे भी एक रेड कलर का रिंग होता है, तो जो बबल होता है या फिर जो रिंग होते हैं वो एग्जैक्टली वो रेड उसके सेंटर के पॉइंट में ही होना चाहिए। अगर वो नहीं है, then first of all we will adjust to make that the bubble should be in the center of that particular ring, ठीक है। that means your balance is completely stabilized on your platform because it may affect in your weight। ये होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नहीं है तो तुम लोग को ये एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट करने के बाद यू विल पुट ऑन द बैलेंस ऑन करने के लिए, उसके बाद वो इट मे टेक सम टाइम टू सो वेट फॉर 5 to 10 minutes टू मेक इट रेडी फॉर द वेइंग पर्पज के लिए। we definitely before we जो बबल ऐड करने से पहले भी सबसे पहले you will clean that balance properly। you generally clean the balance with the isopropyl alcohol most of the time। we acetones can also use because वो भी generally evaporate होता है, but whenever I during in our company the we make the practice that is we are generally using isopropyl alcohol for cleaning the balance because अगर कुछ उसके ऊपर स्टिकी वगैरह लगा हुआ है तो इट विल बी इजीली रिमूव। सो उसकी जो प्रॉपर ग्लास वगैरह से उसका जो पैन है उसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करते थे। देन वी मेक श्योर दैट द बबल शुड बी इन द सेंटर। then definitely you just start the balance। start करने के बाद if your balance is auto calibrated then make them for the auto calibration। if balance is not auto calibrated then you have to calibrate balance on your daily purpose। डेली पर्पज अगर तुम लोग को मैन्युअली बैलेंस को बैलेंस करना है, सॉरी कैलिब्रेट करना है, तो यू हैव टू टेक मिनिमम 2 वेट्स। वन दैट इज द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन से कि तुम लोग का बैलेंस मिनिमम 10 mg का वेट का है एंड मैक्सिमम 200 का है। तो जनरली वी आर कीपिंग 10 mg का वेट एंड उसके बाद वी आर चेकिंग द वी आर कीपिंग द क्या बोलते हैं 100 mg का वेट। अभी 10 mg का वेट कैसे लेना है, 10 mg जब तुम लोग रखते हो तो उसके 5 रीडिंग्स लेने होते हैं। फर्स्ट रीडिंग जब तुम लोग 10 mg का वेट लिखोगे तो सबसे पहले उस वेट को हम लोग सेंटर में लगते हैं बैलेंस के। देन उसके बाद वी आर कीपिंग दिस पर्टिकुलर 10 mg वेट ऑन 4 कॉर्नर ऑफ यूर दैट पर्टिकुलर एजेस और पैन, जो सर्कुलर पैन होते हैं उसके फर्स्ट कॉर्नर पे लेके 10 mg वेट का 10 mg आना चाहिए, दूसरे कॉर्नर पे रख के भी 10 mg आना चाहिए, थर्ड कॉर्नर पे भी 10 mg आना चाहिए, फोर्थ कॉर्नर पे भी 10 mg। तो ऐसे टोटल 5 रीडिंग्स होते हैं 10 mg के एंड सारे के रीडिंग्स एग्जैक्टली 10 मतलब 10.0 उतना ही आना चाहिए, ठीक है। उसका लिमिट रहेगा प्लस और माइनस 0.1 वगैरह, बट आइडियली उसका वेट एग्जैक्टली एक्यूरेट आना चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं आ रहा है दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर बैलेंस, आई एम रियली सॉरी। तो इसके हिसाब से देन सेम फॉर 100 ग्राम के वेट के लिए हम लोग करते हैं, मतलब बैलेंस से किसी भी पार्ट के ऊपर अगर तुम लोग वेट करते हो तो द वेट शुड बी द यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके लिए हम लोग उसका कैलिब्रेशन करते हो। then generally it is in company the weighing balance is attached with the printer, so when as soon as you calibrate it you just keep the press the button print, so तुम लोग का कैलिब्रेशन का रिपोर्ट आता है along with the weight कि तुम लोग ने 10 mg का जो वेट लिया था उसका एग्जैक्टली वेट कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लेने के बाद कैलिब्रेशन प्रिंट लेने के बाद you supposed to stick that particular calibration का strip on your logbook and first मतलब each and every day की सबसे पहली बैलेंस के लिए जो एंट्री रहेगी नंबर 1 पे वो रहेगी एंट्री फॉर द कैलिब्रेशन। मतलब आने के बाद सबसे पहले हम लोग ने कैलिब्रेशन किया है, देन वी आर स्टार्टिंग द वे। तो द कैलिब्रेशन डेट ऑफ द कैलिब्रेशन मतलब डेट रहेगा, टाइम रहेगा, देन वी परफॉर्म द कैलिब्रेशन ऑफ द बैलेंस अलोंग विद द 10 mg वेट एंड
100 mg वेट, एंड उसी पेज पे कॉर्नर पे साइड में जनरली वी आर स्टिकिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिप जहाँ पे एक्चुअली वेट कैलिब्रेशन का रिसिप्ट होता है. देन यू आर स्टार्टिंग द वेइंग फॉर एनी सब्सटेंसेस. तो जैसे भी तुम लोग किसी भी कंपाउंड के लिए वे करना है, ठीक है, तो अभी कैलिब्रेशन होने के बाद आइडियली यू स्विच डज नॉट स्विच ऑफ द योर बैलेंस, ठीक है, because whenever you if you switch off the balance, whenever you are again restart your balance, you need to calibrate the balance. So that's why whenever we are start the balance, we directly close or switch off your balance when you are actually complete work of your day is completed and end. Then only you can just switch off the balance. In between you don't switch, generally we not switch off the balance, ठीक है. उसके बाद जब भी वे लेना है जनरली हम लोग को होने के बाद वी जस्ट कीप द बैलेंस ऑन योर नॉन वेइंग मोड, ठीक है. उसका एक पर्टिकुलरली देयर इज अ word for which we are generally using for that particular terms. I really don't recollect that particular word. जहाँ पे तुम लोग का बैलेंस 0 0 पे होता है, उसके ऊपर डेट एंड टाइम एंड टेम्परेचर ऐसे सब दिखते हैं. अपने बैलेंस पे भी वो है, जस्ट यू जस्ट प्रेस दैट पर्टिकुलर बटन. तो उसके बाद बैलेंस स्टेबल होता है, मतलब इट इज नॉट एक्चुअली वेइंग द सैंपल. Then whenever you want to weigh, just again we will just click on, that is मतलब अगर weighing mode पे जाता है हो, weighing mode पे जाने के बाद first of all you will keep that your butter paper और जो भी empty vessel है उसके ऊपर रखोगे. You will start taking the weighing of that particular sample. वे लेने के बाद तुम लोग रिमूव करोगे. इज देयर एनी सपोज ड्यूरिंग द वे करते हो कुछ भी जब भी वीकर रखते हो, जैसे कि उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टेबलाइज. जब वो तुम लोग वे लेते हो तो उसके साइड में कैसे एरो होता है जो ब्लिंक करता है कंटिन्यूसली. तो ब्लिंक करता है उसका मीनिंग क्या है कि बैलेंस इज टेकिंग वेट और टेकिंग इट्स ओन टाइम टू वेइंग दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो जब तक वो ब्लिंक करने वाला साइन होता है, वो स्टेबिलाईज नहीं होता है, तब तक तुम लोग को वेट करना है. जनरली हम लोग या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, whenever they are keeping button beaker, just press tear button. So it's make difference in your way because तुम्हारा बीकर 100% टेयर नहीं हुआ है. जैसे तुम लोग ने रखा, बैलेंस ने बीकर का वेट लेने से पहले तुम लोग ने उसको टेयर किया, ठीक है. तो एक्चुअली तुम्हारे बीकर का वेट वे नहीं हुआ है. तो तुम लोग हार्डली उसके अंदर 10 ग्राम भी सैंपल डालोगे तो भी उसका वेट कभी कभी ज्यादा दिखा सकता है, बिकॉज यूर बैलेंस इज नॉट कम्प्लीटली टेयर. So first of all keep your empty whatever it is, any butter paper or any beaker जो भी रखोगे, उसके बाद the give the time for the balance to weigh that particular empty vessel, ठीक है, जब तक वो blink हो रहा है. as soon as it stop for blinking and stabilize, then जो भी weight रहेगा वो weight तुम लोग लोगे. then suppose you want to tear that particular balance for taking the actual weight of the sample, then tear and make it as a sorry 0 0. As soon as you make the 0 0, then you will taking the weight of that particular sample. वे लेने के बाद डेफिनेटली तुम लोग रिमूव करोगे. रिमूव करने के बाद अगेन यू हैव टू टेयर योर बैलेंस एंड कम टू द नॉन वेइंग मोड के ऊपर तुम लोग को रखना है. जैसे ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, make the entry in logbook, that is this is a particular date and this is the time where I have taking the weight of this particular compound and मैंने इतना weight लिया था. तो ये तुम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सा वेट एंड कब लिया था. तो लॉग बुक में तभी के तभी हर एक इसका एंट्री होना चाहिए. उसके बाद डेफिनेटली कुछ गिरा है तो तुम लोग उसको रिमूव करोगे. अगर तुम लोग को एकदम लोवेस्ट कंसंट्रेशन वाला वेट लेना है तो बैलेंस इज फ्लक्चुएशन ऑन योर फैन और एसी का टेम्परेचर. So definitely, first of all, you should be switch off the fan or switch off the AC when you are taking the weight in milligrams. So ideally, it will fluctuate along with the क्या बोलते हैं temperature and air. नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना था वेइंग बैलेंस के बारे में. सबसे पहले तो तुम लोग उसको वे करोगे, टेयर करोगे, प्रॉपर रखोगे. नेक्स्ट जैसे कि जब भी तुम लोग वेट लेते हो, अभी तुम लोग को पता है कि सॉलिड सैंपल का वेट कैसे लेना है. समटाइम्स यू नीड टू टेक द वेट फॉर लिक्विड सैंपल्स ऑल्सो. तो लिक्विड सैंपल का वेट कैसे लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से नॉट ओनली लिक्विड सैंपल, स्लरी. जैसे कि इमेजिन करो यू वांट टू फाइंड आउट द सॉरी ऑयल कंटेंट या फिर लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फेयर एंड लवली, ठीक है.
So you want to weight the 5 ग्राम ऑफ फेयर एंड लवली का सैंपल. कैसे करोगे? बिकॉज जब भी तुम लोग लेने जाते हो इट इज अ वेरी स्टिकी. तो स्पैचुला से लेने जाते हो तो वो स्पैचुला को स्टिक करता है, या फिर बीकर को लेने जाओ तो आजू बाजू में वो स्टिक करता है, तो उसका प्रॉपरली यूनिफॉर्म वेट नहीं आता. तो जनरली वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप इट इन अ बीकर और पेट्री प्लेट रखना है. देन जो बीकर बैलेंस का अपर एजेस वाला साइड होता है, जस्ट ओपन इट एंड जस्ट स्टार्टिंग प्रेसिंग तो एग्जैक्टली सेंटर में तुम लोग का वेट गिरना चाहिए. अगर बहुत कम क्वांटिटी में टेस्ट ट्यूब में वगैरह वेट लेना है, सो यू कैन जस्ट मेक वो चना वाले का जो बोलते हैं ना कोन बनाते हैं, दैट इज आइसक्रीम के लिए क्रीम क्रीम डालने के लिए जो कोन बनाते हैं, वैसे टाइप में बटर पेपर का कोन बनाओ. ठीक है, उस कोन के अंदर तुम्हारा सैंपल भरो, उस कोन को ऊपर से रबर करके उस कोन को completely पैक करो. जस्ट कट द ए टिप ऑफ द कोन with the scissor and slowly start adding the particular sample in the container. तो उससे क्या होता है, वो सैंपल एजेस में चिपकता नहीं है, एग्जैक्टली सेंटर में गिर के तुम लोग उसका इजीली वेट ले सकते हो. कभी कभी वोलाटाइल सैंपल्स होते हैं, उसका वेट लेते में बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, तो वो टाइम पे तुम लोग को ट्राई टू सब सारी चीजें को क्लोज रखना बहुत जरूरी है. एंड जितना तुम लोग फास्ट वे करोगे उतना अच्छा रहेगा. नेक्स्ट स्टेप जैसे मुझे बोलना है, समटाइम्स यू वांट टू देयर इज नो नीड टू टेयर, मतलब सैंपल को जैसे कि अभी हम लोग ने कैलिब्रेशन वगैरह किया था, हम लोग को सैंपल को टेयर करना नहीं होता. So whatever weight along with that particular sample, because you exactly want to the weight, जैसे कि कार्ल फिशर वगैरह रिएजेंट हो गया कि कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट के लिए व्हेन वी आर मेजरिंग द वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट इन मिथेनॉल इथेनॉल एक्सेट्रा लिक्विड सैंपल, बिकॉज इट्स प्यूरिटी चेक करने के लिए हम लोग मेजरली वो यूज करते हैं. So it is very dedicated work when you are using the balance, because you have to take hardly 10 microliter of methanol. So सबसे पहले तो वो बहुत volatile होता है. So and you are taking the weight along with the syringe. कि तुम लोग का जो जीसी का सिरिंज होता है ना, तो सेम काइंड ऑफ सिरिंज में तुम लोग को सैंपल होता है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी आर कीपिंग द एम्प्टी सिरिंज, उसका वेट लेते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली 10 माइक्रोलीटर सैंपल उसके अंदर फिल करते हैं. 10 माइक्रोलीटर सैंपल फिल करने के बाद उसको अगेन हम लोग वी डोंट टेयर. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका वेट लेते हैं. देन वी जस्ट देन वी टेयर करते हैं सैंपल को. उसके बाद वी जस्ट पुट आउट दैट पर्टिकुलर लिक्विड एंड ये सिरिंज का अगेन वेट लेते हैं. तो इससे क्या होता है, कितना एग्जैक्टली सैंपल तुम्हारे बीकर में गया है वो हम लोग को पता चलता है. एंड कितना पेंडिंग सिरिंज में रहे, बिकॉज देयर इज अ फ्यू मॉलिक्यूल्स में भी चिपका हुआ रहेगा तुम्हारे एजेस के वगैरह वगैरह. तो एग्जैक्टली कितना अमाउंट गया वो देखने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं. मतलब वी डोंट टेयर, वी अगेन वेट एंड वी बैलेंस. ठीक है, समझा क्या मैंने क्या बोला, और शुड आई रिपीट दिस पर्टिकुलर थिंग्स वंस अगेन? सिरिंज पे कैसे वेट लेना है समझाओ, शुड आई रिपीट इट? यस नो कुछ तो लिखो. रिपीट इट. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली? नो मैम और क्लियर है, केतन ने बोला है रिपीट करना है, तो वी विल रिपीट वंस अगेन. जनरली क्या होता है, इमेजिन करो कि कार्ल फिशर, यू आर यूजिंग द कार्ल फिशर का इक्विपमेंट एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन योर मिथेनॉल एंड इथेनॉल सैंपल. ऐसे दो सैंपल तुम्हारे पास आए. तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, बैलेंस को टेयर करोगे. उसके बाद सिरिंज लोगे. ठीक है, सेम इट्स जीसी का सिरिंज होता है वैसे उसका सिरिंज होता है. उसके अंदर 10 माइक्रोलीटर तुम लोग तुम्हारा मिथेनॉल लोगे. उसके बाद तुम लोग बैलेंस को वेट लेने के बाद, मतलब एम्प्टी सिरिंज का वेट लेने के बाद तुम लोग उसको टेयर करोगे एंड वेट नोट डाउन करके रखोगे. उसके बाद नेक्स्ट वी विल ऐड 10 मिलीग्राम और सॉरी 10 माइक्रोलीटर ऑफ योर मिथेनॉल. उसके अंदर फिल करोगे. फिल करने के बाद उसका जो टिप होता है वो प्रॉपरली तुम लोग उसको क्लीन करके सिरिंज को हॉरिजेंटली बैलेंस पे रख के उसका वेट करोगे. वेट करने के बाद अभी तुम लोग को बैलेंस को बिल्कुल भी टेयर नहीं करना है. नाउ सिरिंज उठा के जो तुम लोग का इक्विपमेंट है जिसके अंदर तुम लोग को एक्चुअली टाइट्रेशन करना है कार्ल फिशर का, उसके अंदर तुम लोग मिथेनॉल सिरिंज को प्रेस करके ऐड करोगे. उसके बाद सिरिंज को वंस अगेन बैलेंस पे रखोगे. अभी दोनों का जो वेट डिफरेंस आएगा, मतलब पहले जो वेट किया था वो क्या, सिरिंज प्लस मिथेनॉल, अभी भी वेट रहेगा सिरिंज प्लस मिथेनॉल. तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मिथेनॉल विच यू आर एक्चुअली एडिंग टू योर कंटेनर. so that is the without tearing वाला रीडिंग जो विच वी आर टेकिंग इन द बैलेंस. ठीक है, और मुझे बताना था कि जब भी बैलेंस पे वेट लेते हैं कभी कभी बैलेंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड होता है, तो डेफिनेटली वो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब उसका जो पैन है वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है. तो जस्ट रिमूव द पैन एंड कीप इट इन अ प्लेस प्रॉपरली.
whenever you are taking the weight, अगर कुछ edges पे ऊपर गिरता है तो उसको तभी के तभी clean करना है, otherwise it will affect on your balance metal or whatever part present on your batter, it may be वो destroy हो सकते हैं. And each and every reading के बाद you have to enter the reading into your logbook. ठीक है. So these are the few points which I want to discuss with respect to the good weighing practice. Actually इंटरनेट पे शायद कोई मेथड मतलब आई डोंट नो एक्चुअली नॉट फाइंड आउट शायद रहेगी जीएम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर हाउ एग्जैक्टली वेइंग प्रैक्टिस बिकॉज द क्वेश्चन मे कम फॉर द शॉर्ट नोट्स और 6 मार्क्स के जैसे कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें से सब क्वेश्चन है ए एंड बी. तो बी क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आ सकता है कि वॉट आर द जस्ट गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ गुड weighing practice के ऊपर वगैरह questions आ सकता है. तो you should need that much material to write with respect to this particular topic and it's a very simple and तुम लोग daily basis पे wait करते हो लेकिन फिर भी बहुत सारे problems करते हो. That's why I discuss this particular topic. But I hope you can write the answer on this particular if the question coming on the good weighing practice. So I just want to the cover up the one more topic which is actually हम लोग ने already पढ़ा है. I just want to discuss a few lines with respect to that. That is the one subtopic in this particular unit, that is the inter and intra validation of the method. So it is not any difficult or not any difference with respect to the validation. It is the same procedure जो validation का procedure हम लोग ने in detail में देखा है. But the difference is that inter and intra validation means inter means definitely the you can just keep the validation in your own laboratory. मतलब you own develop the method and तुम्हारे laboratory में method develop हुआ है, तुम्हारे laboratory में ही वो method validation हुआ है. Maybe the same person is doing for the method development and same person is performing the method validation or same person one person is doing method development and then कोई और senior manager या फिर senior manager नहीं बोल सकते, कोई तुम लोग का supervisor रहेगा फिर senior person रहेगा who will validate your method. But it is within the lab, then it is called the intra validation is nothing but the same validation procedure but method किसी और lab में develop हुआ है and it may be the validate into the some another laboratory. So laboratory may be the same company or it may be the outsource for validation के लिए giving to the another company or another public testing laboratory etc etc. That is nothing but the method transfer. मतलब एक जगह पे तुम लोग ने method develop किया है एंड उसका वैलिडेशन तुम लोग कहीं और करने वाले हो. तो समटाइम्स ऐसे होता है कि तुम्हारे लैब में भी तुम लोग वैलिडेशन करते हो एंड एक्सटर्नल को भी देते हैं वैलिडेशन करने के लिए तो चेक की दोनों के वैलिडेशन के रीडिंग्स जो है वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं या नहीं. So that is the terms which we call as a validation. It is the inter validation or intra validation. So उसमें मेजर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, प्रोसीजर इज सेम है. सिर्फ डिफरेंस यही है कि इंटर के अंदर तुम लोग विद इन द लैब में करते हो एंड इंट्रा के अंदर एक लैब में मेथड डेवलप होता है एंड सेकेंड लैब में तुम्हारा मेथड वैलिडेशन होता है. दैट इज द डिफरेंस. अदरवाइज इस टॉपिक में सिखाने जैसा कुछ नहीं है. So only the one topic is left from this particular unit that is a सैम्पलिंग प्रोसेस. तो वो भी मुझे इतने डिटेल में मैं नहीं लूंगी लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक. बिफोर आई स्टार्ट एंड अप द दिस पर्टिकुलर सेशन I just want to discuss a few points. First of all, I just want to ask you to everyone that everybody is having, please repeat the ma'am, not ma'am, no regarding what मैं अच्छा सेम रहेगा शायद वो सिरिंज के लिए रहेगा. आई होप सो. okay, so we will discussing that. I just want to ask you everyone that everybody is having PC at your home along with the internet or anybody is like that कि जिनके घर पे पीसी पे इंटरनेट नहीं है. ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे बैच में और एवरीबडी इज हैविंग पीसी एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तो तुम लोग मैनेज कर पाओगे क्या कि पीसी और लैपटॉप along with the internet. यस मैम वी हैव इट. ठीक है. सब लोग यस यस मत लिखो. जस्ट किसी अगर किसी के पास नहीं रहेगा देन जस्ट वो पर्सन लिखो कि नो मैम वी डोंट हैव. ओके. सूरज इज डोंट हैव. अपार्ट फ्रॉम सूरज केतन. ओके. एनीबडी एल्स? तनुजा, दर्शना. ओके. बाकी सबके पास है क्या? ओके. बिकॉज आई वाज आस्किंग बिकॉज जो मुझे टेस्ट लेना था तुम लोग का थर्सडे के जो भी हम लोग को टेस्ट लेना था एक्चुअली उस टेस्ट के लिए मुझे
तुम लोग के पास पीसी होना चाहिए था, बिकॉज अगर पीसी रहता था तो वी कैन इजीली मतलब वो टेस्ट कंडक्ट करना मुझे काफी इजी जाता है. बट सपोज इफ देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, सपोज दे डोंट हैव द पीसी, देन डेफिनेटली ओके. तो जो मेथड में यूज करने वाले थे एक्चुअली फॉर that particular test, I will skip. I will do some another method for performing that particular test. बिकॉज उस टेस्ट में कैसे था कि तुम लोग को पीसी के ऊपर डिस्प्ले होता है एंड मोबाइल पे एक कोड आता है, जैसे तुम लोग को मोबाइल से आंसर देना है. अदरवाइज तुम लोग को कैसे पढ़ना पड़ेगा कि मोबाइल के ऊपर ही दोनों स्क्रीन रहेगा, मतलब जूम भी चालू रखना पड़ेगा एंड जो काहूट का जो साइट है वो भी तुम लोग को चालू रखना पड़ेगा. एंड दोनों साइड से जूम पे क्वेश्चन पढ़ के काहूट के अंदर से तुम लोग को आंसर देना पड़ेगा. तो वी विल टेक वन टेस्ट, मतलब क्या बोले, ट्रायल टेस्ट हम लोग चाहिए तो कल वगैरह करके देखते हैं. अगर पॉसिबल होता है विथ मोबाइल ऑल्सो, देन वी कैन यूज काहूट फॉर द योर यूनिट टेस्ट जो मुझे थर्सडे को कंडक्ट करना है. And if it's not possible with the mobile, then I can take some another software which we can use for taking unit your sorry that online test के लिए. ठीक है. That's why I just want to know कि कितने लोगों के पास पीसी है, and we can use the parent mobile and we can take so you can use the two mobiles and it is easy to quiz. Okay, ऐसे भी चलेगा. So thank you सुप्रिया कि it's a nice suggestion कि we can use the two mobile. So एक मोबाइल पे तुम लोग को क्वेश्चन दिखेगा, मतलब जूम पे जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, and from the second mobile you can easily answer the question. So okay,